الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی والد کرام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں میری بیٹی ہو، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ہفتہ کی مسافت کے بعد جلے کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانی میں پیدا فرمایا۔ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا یہ بھی کرم ہے کہ ہمارے ابو اجداد، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا نہ ہم سے پوچھا کہ ہم تم کو پیدا کر رہے ہیں، کس طرح پیدا کریں، اور نہ ہی ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ ہمیں پیدا کر۔ وہ پیدا کرنے میں بھی اختیار رکھتا ہے اور نہ پیدا کرنے میں بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں شکل انسانی میں بنایا، ہم نے درخواست نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں انسان بنا دے، ہمیں پتہ تک نہیں تھا۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو بندر بنا دیتا تو گلیاں کوچوں کے اندر اس کے گلے میں رسہ ڈال کے وہ تلیاں ہاتھ میں لے کے گھومتا، پیچھے سے اس کو مالک ڈنڈے مارتا۔ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے بندر کیوں بنایا؟
وہ اگر گدھا بنا دیتا تو لوگ ہمارے اوپر بوجھ لاتے اور مرضی کے ساتھ چلاتے، ہم چلاتے چیختے شور مچاتے لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ مالک ہمیں مار مار کے پورے محلے کے اندر گھماتا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد پھر اللہ نے جس چیز کا انتخاب کیا اس پہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، بدھ مت نہیں بنایا، کسی اور مذہب کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ یہ اس کا کتنا کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ اس کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں نے اس سے قبل والے جمعے میں ایک عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کی تخلیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث کیا، یہ عظیم تخلیق تھی۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن تقویم میں پیارے آقا کی پیدائش کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا، سب انسانوں سے نرالا انسان بنایا، سب انسانوں کا سردار بنایا، سب انسانوں میں اولو البشر بنایا، یعنی سب بشر ہیں لیکن ان سے بڑا بشر ہے، سب نبی ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ایک ممتاز مقام دیا، فرمایا اے میرے محبوب، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، نبوت وہاں تک تھی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، نبوت وہاں تک تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگ سے بجانے کی کوشش کی، وہ اپنی قوم تک تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، بنی اسرائیلیوں تک نبی رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، بنی اسرائیلیوں تک رہے، لیکن اے پیارے محبوب جب ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا تو کل کائنات قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر فرد کے نبی، ہر فرد کے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کا تذکرہ ایسے انداز میں کیا کہ کوئی آج تک نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی ابتدائی زندگی سے انتہا زندگی تک ان کے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے رہنے سہنے کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، ان کی بے بسی، ان کی بے حسی، ان کے مجبور ہونے کا، ان کا درد محسوس ہونے کا، ان کو لوگلان کرنے کا، ان کو ہجرت کرنے کا، ہجرت کرنے کے بعد وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ، نبوت کو پھیلانے کا، وہاں اصحاب پیغمبر کے جتنے جان نثار تھے ان کے مان لینے کا، یہودیوں کو آپ پر اعتراض کرنے کا، منافقین کو کا آپ پر وار کرنے کا، جہاں تک کہ آپ کو ہر طرح سے آزمایا گیا، آپ کو ہر طرح سے آزمایا گیا۔ آپ کی پیدائش کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی زبان سے کروایا جو معاشرے کے اندر معزز تھے، معاشرے کے اندر کیا تھے؟ معزز تھے، اور اس قبیلے میں پیدا کیا، یہ سب قبیلوں میں معزز تھا، سب قبیلوں میں معزز تھا۔ اس ماں کے شکم سے پیدا کیا جس ماں کا تذکرہ براہ راست اللہ نے دیا، اللہ نے براہ راست ان کی الہامی طور پہ تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں کے
जिगर के अंदर, माँ के शिकम के अंदर रहना भी मुबारक था। जहाँ चलते थे तो वो रास्ता छोड़ देते थे। जहाँ जिस कुएं पे जाती थी, पानी भरने का इरादा करती थी, पानी खुद ऊपर आता था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज में बयान किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब का की तरबियत का इंतज़ाम भी खुद किया। फरमाया, ऐ महबूब, आप यतीम थे, हमने यतीमों का वाली बना दिया। आप गुर्बत में थे, हमने गुर्बत से निकाल कर गनी कर दिया। आप रास्ता भूल गए थे, हमने आपको रास्ते पे लगा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे तज़किरा किया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपका सीना तंग था, हमने आपके सीने को चाक कर दिया। सीने को चाक करने के बाद जहाँ जो आपकी कमज़ोरी थी, जिस जगह पे आपके अंदर वो चीज़ें थी, वो सारी बाहर निकाल कर हमने उसको धोला कर फिर आपके सीने में पेवस कर दिया। और हिकमत, इल्म और तकवा और आपकी वो मजबूती को हमने आपके सीने के अंदर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि हमने आपके सीने को खोल कर, सीना चाक करके, दिल को निकाल कर, उससे सारी ये वबाएँ निकाल कर, सारी बीमारियां निकाल कर हमने आपको एक मजबूत दिल दिया। आपके दिल के अंदर हमने इस्लाम की मोहब्बत और रहमदिली, लोगों की मोहब्बत, लोगों पर शफ़क़त और लोगों पर मेहरबानी का वो जज्बा दिया। फरमाया, वो ऐसे दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए हमने आपको रहमत बना कर भेजा। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। रवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका का जब सीना चाक किया गया, आप फरमाते हैं कि मैं 10 साल मेरी उम्र थी, मैं यमन के अंदर माई हलीमा सादिया के घर में था। वहाँ से जब बाहर पहाड़ियों के अंदर बकरियाँ चराने के लिए अपने रज़ाई भाई के साथ निकला, वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे 2 फरिश्ते यानी 2 आदमी आए जिनका चेहरा इतना नूरानी था, मैं उसके खूबसूरत चेहरा आज तक किसी का नहीं देखा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके जिस्म के ऊपर ये लिबास था, मैंने आज तक किसी के जिस्म के ऊपर वो खूबसूरत लिबास नहीं देखा। उनका चेहरा हसीन था, उनका लिबास हसीन था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उन्होंने आकर बाजू से पकड़ा, दोनों बाजू से पकड़ कर वहाँ एक दूसरे से कहने लगे, इसको लेटा दो, इसका सीना चाक करना है। एक दूसरे को कह रहा है, सीना चाक कर दो, इसमें तमाम चीज़ें वो जो अल्लाह को मंजूर नहीं सब निकाल दो, सब निकाल दो। वो सारी चीज़ें आपके सीने से, आपके दिल से निकाली गई। और फिर उतने ही खून का लोथड़ा जब निकाला गया, उतना ही एक चीज़ चमकती हुई मेरे सीने के अंदर प्रवेश कर दी, दिल के अंदर। मैं सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अंगूठे के साथ मेरे सीने को बंद कर दिया गया और मुझे कहने लगे, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। 10 साल की उम्र में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना या बहर को धोकर सारी चीज़ों से पाक करके आपके सीने के अंदर रख दिया गया। और दूसरी मर्तबा जब आप सिदरत मुंतहा के ऊपर जा रहे थे, आप मेराज को, आपको जब मेराज करवा गई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना असगर को चाक किया गया और फिर दोबारा आपके सीने को धोकर, आपके दिल को धोकर उसके अंदर तमाम चीज़ें अनवारात भर के, हिकमत भर के, इल्म भर के, वो मजबूती भर के फिर आपको मिराज करवाई गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के बारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ प्यारे पैगंबर, क्या हमने आपके सीने को चाक नहीं किया? क्या हम आपके सीने को हमने चाक नहीं किया?
फरमाया चाहिए उसकी वजह वज़अना अन्का विज़रक, आपके ऊपर बोझ था, आप बोझ महसूस कर रहे थे, आप थक चुके थे, आपकी कमर झुक गई थी, आप इतने लागर हो गए थे, बीमारी में मुब्तला हो गए थे, इसलिए हमने आपके सीने को जाग करके वो तमाम बोझ निकाल दिए। इल्म हिकमत बाजी। इसके बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने पत्थर मारे, आपको लहुलान कर दिया गया, आपको दिला वतन कर दिया गया। आप इतने मजबूत और इतने ताकतवर निकले कि उफ तक भी नहीं कहा, अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें बर्दाश्त की। आपको पैदाशी घर से निकाल कर एक ऐसी जगह पे भेज दिया, उस शहर के बारे में फरमाया कि वो बीमारियों का घर था। मदीने का पहला नाम क्या था? यस्रब। क्या नाम था? यस्रब, बीमारियों का घर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ हिजरत करने के लिए जब हुक्म दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि बीमारियों का घर है, बीमारियों का शहर है, मुझे वहाँ मत भेजिए। आपने कहा चलो अल्लाह का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा। आप वहाँ पहुँचे तो वो पूरा शहर, पूरा मदीना, जिसके बारे में आपने दुआ की, या अल्लाह ये जो मदीना है, जिस तरह तूने मक्का को मुहर्रम बनाया, मक्का का इकराम करवाया, मक्का की ताज़ीम करवाई, मक्का को अजमत दी, ऐ अल्लाह मेरे मदीने को भी अजमत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मदीने को मदीना बना दिया और ऐसा मदीना बनाया कि जाने वाले वहाँ जाते हैं, जाने वाले वहाँ जाते हैं तो आने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी नूरानियत वहाँ बरसा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आए मक्का, आए खाना काबा, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या करूँ, तेरे लोग जहाँ मुझे रहने नहीं देते और मैं मजबूरन जहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, है प्यारे हबीब, आपको खाना काबा से मोहब्बत है, मुझे मदीने से मोहब्बत है। जहाँ आप रहते हैं मुझे इस शहर से मोहब्बत। अल्लाह ने वहाँ नूरानियत बरसाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो मकाम, मर्तबा, शान और शौकत दी। फरमाया, हमने आपकी उस तकलीफ को दूर कर दिया कि जिसने आपकी कमर को टेढ़ा कर दिया था, जिसने आपकी कमर को टेढ़ा कर दिया था, जिसने आपकी कमर को झुका दिया था, हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल कर उसमें इल्म हिकमत भर दिया और आपके लिए जितनी मुश्किलात परेशानी थी उसको हमने निकाल दिया। आगे क्या फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी चले जाओ, जहाँ कहीं भी चले जाओ, दुनिया के कोने कोने का सफ़र कर लो, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जिक्र, जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ आपका जिक्र है। एक बात नोट करें, यहूद, नसारा, बाकी जो मज़ाहिब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का इक़रार करते हैं, तौहीद का इक़रार करते हैं कि अल्लाह है, वो एक ही है, वो एक ही है, सब मानते हैं। आपने देखा होगा, 8वें पारे को उठा कर देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन 7वें और 8वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? यज्ञ मौजों के अंदर फंस जाते हैं, दरिया समुंदर इनको घेर लेता है, मौजें इनको घेर लेती हैं, तो ये कहते हैं अल्लाह हमें बचा ले। वहाँ खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, वहाँ किसी और को नहीं पुकारते, मुझे पुकारते हैं और मैं फिर इनको किनारे लगा देता हूँ। जब किनारे लगाता हूँ फिर वही शर्कशियाँ शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने को मानने के लिए यहूद और नसारा भी हैं, यहूद और नसारा भी हैं,
بدھ مرد مشرق بھی ہے، سارے جتنی کل کائنات ہے تخلیق کے بارے میں سوالات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کر دیکھنے جب انہوں نے سوال کیا کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا، سوائے نمرود کے باقی کو سب مان رہے تھے لیکن کہہ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی اقرار کروایا کہ اے پیارے حبیب، اے میرے جتنے مبعوث کیے ہوئے پیغمبروں، ان سے پوچھو کہ یہ تخلیق کس نے کی ہے، سب کہیں گے اللہ نے کی ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، اب اللہ کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہمارا ماننا جدا ہے، ان کا ماننا اور مسلمان کا ماننا جدا ہے۔ یہ ایک ترتیب بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، اقرار تو وہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہے، مانتے تو وہ بھی ہیں کہ اللہ ہے، لیکن تمہارا ماننا ان کا ماننا جدا ہے، تمہارا ماننا ان کا ماننا جدا ہے، تمہارا ماننا میری تابع داری کے اندر ہے، ان کا ماننا میری تابع داری کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین تیسرے پارے کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنا خدا ماننا چاہتے ہو، مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو۔ جس نے میری اتباع کی، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے پیارے پیغمبر کی اتباع کی، اللہ نے ان کو محبت دے دی، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو محبوب ہونے کی سند دے دی اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ کیا بن گیا؟ جنت کا حقدار بن گیا۔ لیکن شرط یہ لگائی، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میرے پیارے محبوب کی اتباع کرنا۔ اب معلوم ہوا جہاں توحید کا تذکرہ کیا جائے گا، جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے گی، جہاں اللہ کی الوہیت بیان کی جائے گی، جہاں اللہ کی کبریائی بیان کی جائے گی، جہاں اللہ کی وحدانیت، جہاں اللہ کا ایک ہونا، جہاں اللہ کا مختار کل ہونا، جہاں اللہ کا عالم الغیب ہونا، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی، لیکن قبول اس وقت ہوں گی جب تک فَاتَّبِعُونِی، جب اتباع نہیں ہوگی۔ پیارے آقا کے بتانے سے، پیارے آقا کے وہ بتائے ہوئے نظام کے تحت اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور پیارے آقا کی رسالت کا اقرار کریں گے تو تب جا کر قبولیت ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں توحید کو مانتا ہوں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ ایمان سے خارج ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار کرنا لازم ہے۔ کلمے کا ایک جز توحید کا ہے، دوسرا جز رسالت کا ہے، رسالت کے بغیر توحید مکمل نہیں، اور توحید رسالت توحید کے بغیر مکمل نہیں۔ جس طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح میرے اللہ کو مانو، اس طرح مانو گے تو سب قبول ہوگا، اور جس طرح اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب کی اتباع کرو، اتباع اس طریقے سے کریں گے تب قبول ہوگا۔ ہم اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتے، اللہ نے جو بتایا اس طرح کرنا ہے، پیارے پیغمبر نے جس کا حکم دیا وہ کرنا ہے، پیارے پیغمبر نے جس طرح بتایا اس طرح کرنا ہے، اپنی طرف سے ترتیب نہیں بنانی، وہ ترتیب آپ کی اپنی ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث کی نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھی گئی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، یہ پیارے رسول کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ سے کوئی بات میری طرف منسوخ کی جو میں نے نہیں فرمائی، جو میں نے نہیں کہی، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ آج تو ہم قصے کہانیاں بہت سنتے ہیں، بہت سارے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی رسول کی طرف سے ہے۔ رسول کی طرف وہی ہوگا جو آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف وہی ہوگا جو قرآن نے فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی آپ اپنی ترتیب سے کر سکتے ہیں، کسی کی اصلاح کے لیے آپ قاعدہ کلیہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو حدیث کے ساتھ ہی جوڑنا چاہیے، اس کو قرآن کے ساتھ ہی جوڑنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے
यहाँ फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यूरोप के किसी इलाके में चले जाओ जहाँ मुसलमान हो, अल्लाहु अकबर की सदा लगती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगती है, वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़रूर सुनेंगे। वहाँ आप मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ज़रूर सुनेंगे। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सदा वहाँ लगती हुई नज़र आएगी। और दुनिया वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने पे मजबूर हैं और मजबूर होंगे, मजबूर भी हैं और मजबूर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बगैर ना हम कामयाब हो सकते हैं और ना कामयाब होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो पैगाम हम अपने दिल से भी कबूल करेंगे और दूसरों को भी इसकी दावत देंगे। जब तक नहीं देंगे तो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हो सकते, अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को, आपका बैठना रहना बहना खाना पीना जो किताबों में जिक्र है, जो सहाबा ने हम तक पहुँचाया है, जब तक हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नहीं लाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। ख्वाह वो कितना ही बड़ा फिलासफर क्यों न हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस क्यों न बन बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अहकाम को पूरा करने के लिए, कामयाब होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, दुनिया आखिरत बनाने के लिए, कब्र से आज़ाब का छुटकारा पाने के लिए और पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरने के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पाने के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौज़ कौसर से जाम पीने के लिए हमें उनकी इत्तबा करना पड़ेगी। हमें उनके रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा, हमें उनके मिशन को लेकर चलना पड़ेगा। जब तक नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब का तज़किरा अपने साथ कर लिया और ये प्यारे हबीब के हट कर कोई और रास्ता ढूंढ के अल्लाह से जाकर मिलना चाहता है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया का कायदा कानून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात लेके आए, बैठकर पढ़ना शुरू किया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर क्या पढ़ रहे हो? फरमाया, अल्लाह के रसूल तौरात पढ़ रहा हूँ। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर हो गया। फरमाया, जिस मूसा पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाज़िल की, वो मूसा भी अगर जिंदा होते तो आज उनको भी मेरी इत्तबा करना पड़ती। मेरे कुरान के अलावा तौरात का मुताला करना दुरुस्त नहीं है, तुम इसका मुताला क्यों कर रहे हो? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सब कुछ बयान कर दिया, तौरात का भी तज़किरा कर दिया, इंजील का भी तज़किरा कर दिया, ज़बूर का भी तज़किरा कर दिया, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान कर दी, इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमर देखते नहीं प्यारे आका का चेहरा मुतगय्यर हो गया, छोड़ दो इसको। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी इस नबूवत पे राज़ी हूँ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्लाम पर राज़ी हूँ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हूँ, नबी होने पर राज़ी हूँ। अब दोस्तों, देखना ये है कि आया कि हम कामयाबी चाहते हैं या नाकामी चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं, हमारी तरकीब ज़िंदगी की क्या है, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात क्या हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं। आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस मिशन को, उस काम को, उस तमाम वो इंतखाबात को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर डालते हैं कि नहीं? हमने क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की तरह हम सोते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की तरह हम खाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मामूलात करने में हम आपकी इत्तबा करते हैं? नहीं करते मेरे भाई। हमने ये चीज़ें अपने दिल से भी निकाल दी, अपने ईमान से भी निकाल दी। ईमान तो हमारे अंदर है लेकिन कमज़ोर हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका है।
जब ईमान कमज़ोर हो गया तो हमारे आमाल नहीं सामने आ सकते। ईमान जितना मजबूत होगा तो आमाल उसके जिस्म पर मरतब होंगे। ईमान की कैफियत जिस्म पर आती है, और ईमान जितना कभी होगा, जितना मजबूत होगा, इतना उसके जिस्म के ऊपर वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ईमान के साथ मुंसलिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीका ईमान के साथ मुंसलिक है। जिसने ईमान बनाना है उसके आमाल भी सही होंगे। जिसका ईमान मजबूत होगा उसका जिस्म पुकार उठेगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म को मानना चाहिए। आज हम हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम खाना अपनी मर्जी के साथ खाते हैं। इसके अंदर अगर हम सुन्नत शामिल कर लें, खाना तो हमारी ज़रूरत है लेकिन सुन्नत के मुताबिक खाया इबादत बन जाएगी। सोना हमारी ज़रूरत है, सुन्नत के मुताबिक सोओगे तो इबादत बन जाएगी। चलना हमारी ज़रूरत है, सुन्नत के मुताबिक चलने वाले बन जाएं तो ये हमारी इबादत बन जाएगी। अगर इसके बाद हमारे कपड़े पहनना हमारी ज़रूरत है, सुन्नत के मुताबिक पहन लें तो ये हमारे लिए इबादत बन जाएगी। ऐसे तरीके हैं कि औलाद की तरबियत हम सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं तो ये इबादत बन जाएगी। ये हमने क्यों छोड़ा हुआ है? क्या हमने अगयार के वो तौर तरीके अच्छे लगते हैं जो प्यारे आका ने ज़िंदगी के तमाम उस मनसब को, ज़िंदगी के तमाम नस्बोलैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया? क्या हमारे पास वो नहीं है? क्या हमने इन चीज़ों को क्यों बुला दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को छोड़कर हम गैरों के तरीक़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हमारी ज़िंदगी हमारे लिए वबाल बन चुकी है। हम चलते हैं परेशान हैं, बैठते हैं परेशान हैं, हम किसी से मामला करते हैं परेशान हैं, किसी के पास अमानत रखते हुए डरते हैं, किसी को कुछ देते हुए डरते हैं, किसी से कुछ लेते हुए डरते हैं। सारे ज़िंदगी की सारी वो रोइदात, सारी वो ज़िंदगी की शुरुआत जो हम करना चाहते हैं तो जब तक और शक में करते हैं, हमारी ज़िंदगी अजीर बन चुकी है। हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती। हम औलाद के लिए परेशान हैं कि औलाद नाफरमान है। उसकी वजह यह है कि हमने प्यारे रसूल का वो कानून छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि हमने प्यारे रसूल की वो तरबियत छोड़ दी। बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो मार पीट कर उसको नमाज पढ़ाओ। 7 साल का हो जाए प्यार मोहब्बत से ताकियाँ दे के उसको कुछ खिला पिला के उसको शौक़ के साथ नमाज के ऊपर लाओ। और 10 साल का हो जाए तो उसको मार पीट के नमाज पढ़ाओ। हमारे बूढ़े नहीं नमाज पढ़ते, बच्चा बूढ़े नहीं नमाज पढ़ते। इनकी नमाजें कज़ा हो रही है, जुबानों की नमाजें कज़ा हो रही है। हमारे घरों के अंदर बेनमाजी कसरत के साथ पाए जाते हैं। 1-2 नमाजी हैं, उनको भी ताने दे देकर उनको भी जो है ना वो इन चीज़ों से मुतनफ़र कर रहे हैं। अब ये हमारी हालत जब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी ज़िंदगी किधर जाएगी? आज पूरी दुनिया के अंदर हर बंदा पैसे के चक्रों में पड़ा हुआ है। कामयाबी सिर्फ पैसे के अंदर देखता है। पैसे को ज़रूरत बना लो, ईमान को नियत बना लो, ईमान को अपनी ज़िंदगी बना लो, आमाल को अपनी ज़िंदगी बना लो तो कामयाब हो जाओगे। दीन की मोहब्बत दिल में रखो और दुनिया की मोहब्बत हाथ में रखो। दीन की बात आ जाए तो दुनिया को छोड़ दो। हमें दीन की बात आती है, दुनिया ले लेते हैं, और दुनिया की बात आती है, मुश्किल में करते हैं तो फिर दीन के पीछे भागते हैं। जब कोई मर जाता है तो फिर हमें याद आती है कुरान पढ़ना ज़रूरी है। जब कोई मर जाता है तो इसाले सवाब के लिए हम पारों को उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अलिफ लाम मीम से पढ़ना, अच्छा पूरा कुरान पढ़ लिया। इसाले सवाब के लिए फलाने ने इतने पैसे दे दिए, फलाने ने इतना खर्चा कर दिया, इतनी देगे लगा दी, इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने मेहमान आए थे, सबको राज़ी खुश कर दिया। और ये हम इसाले सवाब करने के लिए इसको लाजमी और ज़रूरी समझते हैं। लेकिन ये 24 घंटे आपके घरों के अंदर पड़ा, खोलने का मौका नहीं मिलता, खोलने का मौका ही नहीं मिलता। हम इसको पढ़ के नहीं देखते इसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ताला क्या बताते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाज़िल किया है, उसको हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि हमने ये करना नहीं है, हमने ये करना नहीं है। इसलिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते, हमारे नफ्स के मुताबिक नहीं होते, हमारे दिल के मुताबिक नहीं होते। लिहाजा ये पढ़कर मैं अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में
नहीं डालना चाहता, इसलिए नहीं पढ़ते। इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक हुरूफ पढ़ता है, एक हुरूफ पढ़ता है तो 10 नेकियां उसको दी जाती हैं। बात थोड़ी सी करके बात ख़त्म करता हूँ। एक हुरूफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। फरमाया मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हुरूफ है, फरमाया इसके अंदर अलीफ एक हुरूफ है। अलीफ पढ़ने से आपको 10 नेकियां मिल गई और पूरा कलाम पढ़ोगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। अलीफ लाम मीम पढ़ोगे 30 नेकियां और 30 गुनाह माफ, 30 दराजात बुलंद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझ के पढ़े या बगैर समझ के पढ़े। समझ के पढ़े तो 30 को 30 के साथ ज़र्ब दे दो, डबल सवाब मिलेगा। कुरान पाक को ये समझ कर पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि अल्लाह क्या फरमाते हैं। पहली बात तो ये है कि समझ के पढ़ना चाहिए। अगर समझने के लिए वक़्त नहीं है तो इसको देख तो लो, देख के पढ़ लो। अगर देख के नहीं पढ़ सकते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर घर के अंदर इसको अलमारी के अंदर ताकू में सजाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कोई मर जाता है तो हाथों में उठाया जाता हूँ। जब कसम उठाने की बारी आती है, फिर कुरान लाओ, कुरान पे यकीन है। यकीन तुम्हारा है ही नहीं। झूठे के ऊपर कुरान रखोगे तो वो सच बोलेगा? नहीं बोलेगा, उसको यकीन ही नहीं है। जब किसी चीज़ का यकीन ना हो तो वो उसको क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला के कुरान में यकीन पहला यकीन है। जब इस पर यकीन करके पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा और तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया वो भी दी जाएंगी। दूसरी बात, हम अक्सर अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं किन चीज़ों में? फजूलियात में। फजूलियात के अलावा हमारे पास कोई और शुगल नहीं है। हालांकि हमारे पास, हम दफ्तर में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, हमारी ज़बान बाकी चीज़ों में चलती है, जबकि हमारा अल्लाह का नाम हमारी ज़बान पर नहीं आता, अल्लाह के रसूल का नाम हमारी ज़बान पर नहीं आता। अगर हम ये कर लें, बैठते उठते खाते पीते रहने सहने के मामलात में हम अल्लाह के साथ अपना रास्ता ताल्लुक़ जोड़ लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ जोड़ लें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में उनको रात पड़ गई। इशा की नमाज अदा की, मस्जिद से बाहर निकलने के पहले वो मस्जिद के जो खादिम थे, मुंतजिम थे, उनको कहा कि मुझे रात को जहाँ रहने की जगह दीजिए। उन्होंने कहा, बुजुर्गों हम जहाँ जगह नहीं दे सकते, मस्जिद को बंद करना पड़ेगा। एक बुजुर्ग साइड पे खड़ा उन बुजुर्गों के इमाम अहमद बिन हम्बल की वो कैफियत देख रहा था। उसने कहा, बुजुर्गों आप मेरे साथ चलें, लगता है आप कहीं दूर जाना चाहते हैं। फरमाया, हाँ सुबह होगी तो मैं किसी और सफ़र पे जाऊँगा। तो वो बुजुर्ग उनको साथ लेके चले गए। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके घर पहुँचे, वो तंदूरी था, रोटियां लगा रहा था, वो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ था। वो ये कह रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो रोटियां लगा रहा है, उसकी ज़बान ज़िक्र में चल रही है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आए ज़िक्र करने वाले, आए प्यारे रोटियां लगाने वाले, ये बता कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ? उसने कहा, सब फ़ायदे हैं फ़ायदे। मैंने आज तक एक कोई ऐसी दुआ नहीं की जो कबूल ना हुई हो, लेकिन एक दुआ पता नहीं ताख़ीर है, क्या वजह है, वो अभी तक कबूल नहीं हुई। फरमाया, कौन सी दुआ? और मेरी ये तमन्ना थी कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का दीदार कर लूँ, तो फिर मर जाऊँ तो दुनिया का कोई अरमान नहीं है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इमाम अहमद हूँ, अल्लाह ने तेरी ये दुआ कबूल कर ली। कहाँ से उठाया, किधर लाया, कहाँ तुम्हारे पास भेज दिया। ये है अल्लाह की हिकमत। अब मेरे भाई, अस्तग़फ़ार को अपना शायर बना लो, दुरूद को अपना शायर बना लो। अल्लाह के ज़िक्र में सब कुछ है। अल्लाह के प्यारे हबीब की वो तमाम ताबेदारी और फ़िक्र में सब कुछ है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ लो, अल्लाह के हबीब के ग़ुलाम बन जाओ तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नहीं बनोगे तो फिर इस दुनिया में खपते ही जाओगे, परेशान ही जाओगे। अल्लाह ताला हम सब आमीन नासिर व आमीन दावत।
ہے۔